आज की क्लास में we will start with a short topic again. Labor turnover and absenteeism is done. Okay. Yes. We'll deal with a new topic today, which is quality work life and work life balance. QWL, quality work life and what happened? And work life balance. Okay. This is a topic which is an emerging trend in HR. Quality work life. See, few decades back, quality work life यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके वर्क प्लेस पे जो आपको अलाउ करती है कि आपका जो वर्क लाइफ है यानी जिस तरीके की लाइफ आप ऑर्गेनाइजेशन में बिता रहे हैं, दैट लाइफ शुड बी मेड बेटर एंड मोर like the one where the people are willing to come and work, the people are coming and feeling motivated. पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी. आज के टाइम पे अगर हम ये पढ़ा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज द रीसेंट ट्रेंड इमर्जिंग इन एचआर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय एचआर. प्रॉब्लम्स फेस्ड मतलब एचआर को एक मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में एम्प्लॉयज को रिटेन करना इसलिए लगता है क्योंकि the workforce diversity has changed. There are more females. The females are, occupying managerial positions also, not just operative positions. So that is changing the algorithm in the organization. The second thing is you have people coming from diverse background, cross culture. Not only casteism is a factor, but regionalism is also a factor. And since the world has gone global, there are people in your organizations who are from different nationalities also, right? That is also one reason that how HR has changed. A work-life balance, yani ki something that should make your workplace good and your life also good. मतलब आपका काम जिस तरीके से हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इतना सेटिस्फैक्शन है कि फिर दैट इज हेल्पफुल इन रेजिंग योर सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल. अगर हम तुमको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किए हैं और इतना कम पैसा दे रहे हैं कि यू आर नॉट एबल टू सस्टेन अ हैप्पी लाइफ आउटसाइड, मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ आउटसाइड इन द सोसाइटी, you will not be satisfied. So this is not work-life balance. This is an unbalanced cost due to work. Work-life balance काफी reasons की वजह से अभी important हो गया. पहली बात, आप जितना पढ़ेंगे आपका aspirations उतना ज्यादा होगा. It is easier to it is not easy to lead a learned mass, right? It's not easy to lead a learned mass because they are learned, they are informed people. Okay, the more you study, the more your aspirations, the more your ego is there. So the organization also has to take good care of such things. Quality work, like even the working class, पहले के टाइम पे अगर आप मूवीज देखेंगे, see why I refer to movie is किसी भी एरा की मूवी अगर आप उठा करके देखें, उस एरा की मूवी उस समय को पर्दे पे रिफ्लेक्ट करती है. दैट मूवी रिप्रेजेंट्स व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी देन. जैसे आज भी हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच इज ताबू. ताबू मीन्स वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट इजीली. और आप देखेंगे ध्यान से कि वैसी मूवीज अगर बनाई जाएं तो वो पिट जाएंगी. पीपल विल नॉट लाइक इट. जैसे anything which has to play with our culture, anything which has to contradict the concept of भगवान, आप देखिएगा कि उस पे विरोध बहुत ज्यादा आता है. होता है. Okay. The other thing is, see, no matter how happy we become, there are few things जो society on the large, when we talk about general things, we talk about society on the large. Society on the large में
जैसे कि अगर आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि मजदूरों को कैसे काम कराया जाता है। 70s 80s के टाइम के की मूवी देखो उठा के, मिल में काम कर रहा है, कोई माई बाप नहीं है, हाथ कट गया पैर कट गया, ठीक है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, they are not educated, they are not learned, they are led by somebody who's their leader, sometimes they do not form groups। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1853 के आसपास, तब इंडस्ट्रियल बार्गेनिंग, इंडिविजुअल बार्गेनिंग होती थी। तुमको हम कुछ और पैसा दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि तुम हमसे कितना मांग रहे, और अगले को हम उसी पोस्ट के लिए कुछ और पैसा दे रहे हैं। धीरे 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 ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट आया, जब लोगों ने ये रियलाइज किया कि यूनाइट होकर के हम रहेंगे तो वी कैन टॉक टू द एम्प्लॉयज इन अ बेटर वे, ठीक है। तो उस टाइम के मजदूरों को डील करना वाज इजी। They did not ask for too much of work-life balance. They could work in an environment which was very humid, because that's how the work was supposed to be. They would work in an environment where the employees would have completely autocratic attitude. ऐसा देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। Everything was based completely on the anukampa of the managers. The employers were omnipotent, सबसे ज्यादा powerful। क्यों पावरफुल? बिकॉज दे हेल्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड उनका, कैपिटल उनका, एंटरप्रेन्योरशिप उनका, and the workers were completely divorced from the means of production. All that they had was the hours of work that they could sell. अभी का वर्किंग मास ऐसा नहीं है। You can see the change. आप लोग बीबीए कर रहे हैं, इमेजिन 2023 बैच में, in 23, just imagine the number of BBAs from Patna, only Patna. Then you imagine the number of BBAs graduating from entire Bihar. Then you imagine the number of BBAs graduating from all over India. Imagine the rush. And every year, so many BBAs are being churning out. Similar is the case with MBA, similar is the case with CAs. तो पढ़ने लिखने का नंबर ज्यादा बढ़ गया है, पहले इतने नहीं थे। पहले नौकरी पाना ज्यादा आसान था, जो पढ़ लिया। अब तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं सब, राइट? Everyone has a degree but not a job because the competition is so tough. Every field, just name the field and it has intense competition. कोई फील्ड ही नहीं बचा है जिसमें लोग पढ़ना शुरू नहीं कर रहे, राइट? So because of this, it is impossible for the employer to keep the employees whichever way they want. They'll always look for a good work-life balance. Good work-life balance matlab good working conditions. Working conditions yani you should have a properly designed office. It should not pose any kind of physical or psychological threat to the person or disturbance to the person. The other thing, working conditions में अगर workers के point of view से आप ले तो उसमें artificial जो environment है अंदर का, जैसे lightning proper, ventilation proper, humidification proper, their hygiene, their health, their welfare, their safety, all this is included in work-life balance. जैसे आप लोगों को law नहीं पढ़ना है, लेकिन there are many laws like the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the plantation समझते हैं? क्या होता है plantation? Plantation पौधा? No, it's not that. The Plantation Act, you understand? What is the meaning of plantation? No. You know, then probably you don't understand. बागान समझते हैं आप लोग? टीवी में देखा है दार्जिलिंग वगैरह का कभी फोटो? चाय का बागान देखा होगा? So how is the slope की तरह होता है? चाय का बागान हुआ, रबड़ का बागान हुआ, कॉफी का बागान हुआ, होता है ना? उस पे काम करने वाले मजदूरों के ऊपर अलग लॉ चलता है, अलग लॉ एक्ट करता है। That act is known as the Labor Plantation Act 1951. ठीक है? तो
क्योंकि उनका वर्किंग कंडीशंस अलग है और वो शहर से बहुत दूर होता है। एनवायरमेंट भी है, इट्स रेनिंग ऑल थ्रू द डे और नाइट, एनी टाइम इट स्टार्ट्स रेनिंग एट माउंटेन्स, और वो वर्क का जो तरीका है वो भी अलग होता है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन इस रेफरेंस में। बाकी हाँ एक जगह एक ही प्लांटेशन बहुत बड़ा होता है। जैसे वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ये केवल टी और कॉफी? नो नो, टी, कॉफी, रबर, मीट और राइस। देखना होगा, देखो प्लांटेशन का एक रूल है, ठीक है, कि उसका लिमिट दिया हुआ है कि 20 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया है तो, या कम है तो उसके लिए लॉ पढ़ना होगा तुमको कि क्या क्या कवर्ड होता है इसमें। ओके, सो इट इज implemented on the workers who are working in plantation. तो अब मान लो कि ऊपर काम कर रहा है वो लोग, what if they meet accident? उनका जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो गिर के मर सकते हैं। What if they meet accident? फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, फैक्ट्री में मशीन्स पे काम होता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि हाथ कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गैस चैम्बर फट जाए। What if they have accident? तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन पढ़ाए थे ना, अंडरस्टैंड? तो वो सारी चीजें एक तरीके से वेलफेयर में आती है कि वर्कर्स हमारे यहाँ, अगर आपने मुझे हायर किया है, दैट मीन्स यू शुड वर्क फॉर माई बेनिफिट्स, you should take care of my welfare activities. Okay? मेरी welfare activity plus my safety. अगर आप मुझे एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी ऐसे तरीके के काम पे which has safety hazards, हाँ, you should provide me with safety devices, with proper safety manuals, with proper safety guards and safety measures. ठीक है? इसके बावजूद if I meet an accident in the organization, what is the provision for me? Understood? Welfare. Welfare में आता है जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, ठीक है, वर्कर के कैंटीन की फैसिलिटी, जैसे कि द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर 250 से ज्यादा वर्कर्स होंगे, then the organization should have a canteen facility for people to take lunch. If there are more than 20 female workers in a factory, there should be a provision of crèche. Crèche समझते हैं? Crèche, CRETCH. Crèche. Crèche is a place where जैसे कि वर्किंग वुमेन होती है वो अपने बच्चों को रख के आती है, इट्स लाइक बेबी केयर सेंटर काइंड ऑफ। सो वेलफेयर में ये चीज बोला जाता है कि दे शुड हैव अ क्रेच फैसिलिटी, ये मेजर्स है, वहां प्रॉपर आया होनी चाहिए, खाने पीने का या उन चीजों का इंतजाम होना चाहिए, सो दैट वुमेन वर्कर्स वुड बी फ्री फ्रॉम देयर माइंड and bring their children along with them to the work and take them off at the time of dismissal. जो रिस्पांसिबिलिटी है वो अलग रखते हैं। हाँ, मतलब ये वेलफेयर फैसिलिटी है कि आप वुमेन एम्प्लॉइज के लिए सोचिए, वुमेन का बच्चा है तो इसका मतलब तो सीधा यही हुआ कि she had, if there's nobody to manage her child, she'll have to leave her job. काम करने में बिल्कुल वो भी, बिल्कुल ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और ये एक वेलफेयर एक्ट की तरह है कि यू शुड थिंक अबाउट योर वुमेन वर्कर्स। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, ये सब आपको छोटा लगता है लेकिन ये चीजें नहीं थी पहले, इसीलिए बहुत लड़ झगड़ के वेलफेयर मेजर्स के तौर पे इन चीजों को लाया गया। पहले मजदूरों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, 7, 8, 9 साल के बच्चों को भी एम्प्लॉय किया जाता था 12-12 घंटा के काम पे, ठीक है। एंड देयर आर रिकॉर्ड्स, जब काम करते करते बच्चे या बड़े भी थक के गिर जाते थे और नींद की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता था, गिर गए तो हाथ मशीन पे पड़ गया एंड द हैंड्स वर चॉप्ड ऑफ एंड दे वर थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी है रिकॉर्ड में, ये बुक्स में है। आप जब लेबर की स्थिति देखिएगा, वी हैव कम लॉन्ग वे फ्रॉम दास प्रथा
where workers were sold according to kilos, and to now जब वर्कर्स को माना जाता है कि वो बराबरी के हिस्सेदार हैं प्रोडक्शन में. They have fought a long way. So, मॉलडीव्स वगैरह कैसे बना है, पढ़ना कभी इन चीजों के बारे में. ठीक है. Now, now this is work life balance. यानी वर्किंग कंडीशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे दे विल एम एट मेकिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस बेटर. ओके. नाउ टॉकिंग समथिंग अबाउट द that was quality of work life. ठीक है, QWL जिसको कहते हैं. Now we talk about work life balance. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कितना बैलेंस है. Nowadays there are many factors that are bothering the employees. एक जो सबसे important factor निकल के आता है वो है dual career couple. मतलब the husband is also working and the wife is also working. This is considered to be one major reason for the disturbance in work-life balance. Both are working, both are juggling with their careers, so they do not have much time to spend together or to take care of the family or to even release their own stress. Okay? This problem aggravates, या फिर ये problem और ज़्यादा खराब तब हो जाती है when there is a geographic crisis. मतलब करियर अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में अगर एक कपल में से एक बंदे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे स्टेट में and the couple chooses to go, then it is said कि work life balance is very poor. Okay? ये एक रीजन है. दूसरा, स्ट्रेस. अभी के टाइम पे ज्यादा काम करने, ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने के टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बहुत ज्यादा, इतना बढ़ गया है कि समटाइम्स द एम्प्लॉइज फील लाइक बर्नआउट सिचुएशन. मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इतना स्ट्रेस कैसे हैंडल करूं. ऑफ कोर्स बिकॉज आवर एस्पिरेशंस आर हाई, वेरी हाई. पहले के टाइम पे 50 के बाद people used to be like कि now we are retiring or we are into that phase. अभी के टाइम पे all more जब वर्किंग स्किल्स आप अक्वायर करते रहिए पूरी लाइफ कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और प्राइवेटाइजेशन जोरों पे है, द नेशनलाइज्ड थिंग्स आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड. तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइवेटाइज होगा चीजें तो क्या होगी, आप अगर फायदेमंद नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो बाहर कर देंगे सीधा. So either be competitive, upgrade yourself, or take a back seat. Understood? Yes. ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करती हैं. जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करती है. आपने देखा कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया. yes. क्योंकि जिसकी सैलरी जितनी होती है उसका एक्सपेंसेस वैसे ही मैनेज्ड होता है. The one who is in middle management will have a car on EMI, will have a flat on EMI, will have a lot of other things on EMI, and suddenly the job is gone. From where will he manage the EMIs? Suddenly, a US-based world-class company fired 900 employees, and it was an Indian CEO, right? And then he had gone to Twitter and posted that I am sorry for this kind of thing. The sorry won't make any difference to their lives. 900 employees at a go, imagine. And this became viral. That is why we know there are so many companies that did it and we don't know. So that is why just imagine what would be impact on the bread earner of the family, right? So ये सब चीजें वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करती हैं. ड्यूअल करियर कपल, stress, excessive aspirations, job की insecurity, these are the reasons which are spoiling the work life. Okay, work life balance. You do not have personal and professional life balance. अब इसका solution कैसे? जैसे compressed weekend का एक concept है. जैसे 10 आवर आप 4 दिन काम कीजिए, 40 hours in a week. ये concept
फॉरेन कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में है कंप्रेस्ड वीकेंड्स का, बट वी डू नॉट फाइंड इट वेरी गुड, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ सच लॉन्ग वीकेंड वी लूज आउट ऑन द मोटिवेशन, plus it creates a lot of stress. 10 hours is quite a long time. However, 5 days working and 2 days off is the best thing that we have come to now. Compressed weekends, flexible work timing, work from home, ये सारी चीजें सजेस्ट की जाती है वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर करने के लिए. ओके, दिस वाज अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस.